Hello students, welcome to Geometry School. Students, today we will do the practice set number 4 for 1000 super important question in the section of reasoning. And one more thing, these questions are important for class 6 All India Sainik School entrance examination. However, these questions may be helpful in the class 9th exam, but uh, 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 especially I have prepared these questions for class 6 entrance examination that is going to be conducted on 10th January 2022. So this is set number 4. Let's start. Question number 1. Select the option that is related to the third number in the same way. So this is a analogy part. This question is of analogy part, number series in the terms of analogy. So 256 is related to 256 is related to 13. So 256, as you know, 256 is the square of 16. 16 square is 256. Understand? Now 16 minus 3. 16 minus 3, I get 13. Understand? Similarly, say 676 is the square of 26. Clear? 26 square is 676. If I subtract 3 minus 3 from 26, I will get 23. So the correct answer is 23. Understand? Option number 2 is the correct answer. Next question. The sequence of folding a piece of paper and a manner in which the folded paper has been cut down is shown in the following figure. How would this paper look when unfolded? So the question belongs to fold unfold section, non-verbal part of the reasoning. So first the paper is folded in this way, in this from the two corners. Now the paper is folded in this manner, and the cutting is after folding the paper, there is three cuttings: this type of cutting, this type circle, and this type square cutting. Now when you unfold the paper, what figure will you get? The question is that what figure will you get? As you know, so if I take from these two corners, the cutting is in this way. So this question, uh, this is wrong answer, this is wrong answer, because here the cutting is square, here the cutting is square, and here the cutting is triangular. So this can be the correct answer, this can be the correct answer. Okay. Now here is a circle, here is circle, here is circle, this is correct. But here is four circles, but I have made only one circle, and the same portion will be here, and this portion will be here. Clear? So the option is correct. Now option number 4 is correct answer. इस फिगर में आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि भाई देखिए, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया है कि जो ये पोर्शन किया, तो यहाँ पे ऐसी ही फिगर बना दीजिए आप, ऐसी ही बन जाएगी आपको बिल्कुल सेम फिगर। फिर यहाँ पे ऐसे ही बनी जाएगी आपकी, और यहाँ पे ऐसी बनेगी, ये तो ऐसी बनेगी बिल्कुल। बाकी आप देखें, यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ से कटिंग हो जाएगी, इसमें भी देखिए यहाँ से कटिंग हो जाएगी, ये वाली। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word. So galvanometer is used to measure the electric current. In the same way, graphometer is used to which of the following quantity: humidity, altitudes, angles, or oscillation. So graphometer is used to measure the angles. So this is the part of analogy. Angles is measured by graphometer. The correct answer is option number 3. 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the letter cluster that is different. So FBDX. In this type of questions, you have to catch the pattern. There will be a pattern in two particular letters. Like I am taking here X or D. Clear? X or D. I am taking B or D. B, next C, then come D. So B plus 1 equal to D. B plus 1 equal to
b plus 2, sorry, b plus 2 equal to d. p, here p plus 2 equal to r, d plus 2 equal to f. In the same way, n plus 2 equal to p. Here, so in all the four in the four sequence, in the four terms, the sequence is same, so I cannot find the answer from this method. Now I will do the same for the another pair, like I am doing it for b to f, b c d e f, b plus 3 c d e f. Clear? So b plus 3 c d e plus 1, that is f, means b plus 4 is equal to f, b plus 4 equal to f. p q r s t, p plus 4 equal to t. d e f g h, d plus 4 equal to h. n o p q r s, n plus 5, here I will get n plus 5 equal to s, n plus 5 equal to s. So this is the different one. You have to follow this approach. आपको दो पेयर लेने हैं, कोई भी दो पेयर आप ले लीजिए, उसमें चेक करिए क्या रिलेशन, सब में रिलेशन सेम बैठ रहा है कि नहीं. पहले मैंने बीच वाले पेयर लिए, मुझे यहाँ से सब में रिलेशन सेम मिला, तो यहाँ से मेरा आंसर नहीं आया. अब मैं क्या करता हूँ, इन दो से ले लेता हूँ, इन दो से मैंने चेक किया, इन दो से मुझे आंसर सेम मिला. देखिए मैं इसको और भी एक दो और भी देख लेते हैं, उससे भी शायद आंसर सेम मिलेगा. जैसे मैंने डी और एफ में, डी ई एफ प्लस 1, आर एस टी प्लस 1, एफ जी एच प्लस 1, पी क्यू आर एस, देखिए यहाँ पे, यहाँ से भी सेम मिल रहा है. क्लियर? इसमें भी बिल्कुल एकदम यहाँ पे क्यू आर एस पी प्लस 3 से मिल रहा है मुझे. क्लियर? थर्ड में मैं अगर 3 देखूँ तो थर्ड प्लस में देख करके देखूँ तो मुझे ये मिलेगा आपका. अंडरस्टैंड? चलिए, अब p प्लस 3 का मतलब क्या है? जैसे आपका p का p, जैसे यहाँ से मैं d प्लस एफ है, d का टर्म कितना, d का वैल्यू कितनी होती है 4 नंबर, d कितने पे आता है 4, फोर्थ पे, लेफ्ट से फोर्थ पे आता है. और f कितने पे आता है, f आता है आपका 6 पे. तो मैं d e f, मैं 4 प्लस 2, तो मुझे प्लस 2 करके मुझे 6 मिल रहा है. क्लियर? ऐसे मैं इसको ऐसे इस टर्म में बता रहा हूँ आपको. तो हम इनको ऐसे इन क्वेश्चंस को निकालते हैं. नेक्स्ट चलिए, select the figure from among the given option that can replace the question marks. तो आपको क्या ना, एक पैटर्न है यहाँ पे, ये डायरेक्शन है. अब ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली आपकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब जो आपकी वॉच होती है, जो आपकी घड़ी होती है, उसकी क्लॉक की जो हैंड्स होते हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसको क्लॉकवाइज कहेंगे. और अगर वो क्लॉकवाइज हैंड्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज. जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज हो गया और ये हर बार एक एरो बढ़ता जा रहा है. अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया. अब नेक्स्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा और एरो होंगे 5. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, एरो है 2. यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट है, एरो हो गई आपके 6, 5 होने चाहिए. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये ऑप्शन भी गलत है. क्यों? क्योंकि आपकी देखिए यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन आनी चाहिए, ये वाली डायरेक्शन आएगी. तो ये वाली डायरेक्शन किसमें, इसमें नहीं है. ये वाला करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है. नेक्स्ट, ये वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं, इसको भी थोड़ा देख लीजिए. इसमें क्या है आपका सैटर्न, प्लैनेट और कैडमियम. सैटर्न, प्लैनेट और कैडमियम. आपको पता है सैटर्न क्या एक प्लैनेट है, तो प्लैनेट तो आएगा सबसे बाहर, क्योंकि भाई सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, अर्थ है, ये सारे क्या प्लैनेट है. तो क्या आएगा, सैटर्न सबसे बाहर, तो क्या आएगा प्लैनेट. और उसके अंदर कौन आएगा, सैटर्न, क्योंकि इसका एक पार्ट है सैटर्न भी एक प्लैनेट है इसका, सैटर्न भी नाम है प्लैनेट का, वो सारे प्लैनेट्स के अंदर ही आएगा. और कैडमियम क्या है, कैडमियम एक मेटल है, तो कैडमियम बिल्कुल रहेगा अलग. कैडमियम का इनसे कोई लेना देना नहीं. तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है. क्लियर? ये सिलोजिज्म का पार्ट है. अंडरस्टैंड? सिलोजिज्म का पार्ट है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पुलोवर एनालॉजी. पुलोवर का रिलेशन किससे है, वूल से.
तो पुलोवर क्या होता है? पुलोवर जो स्वेटर वगैरह आप वूल का यूज करके स्वेटर जो पहनते हैं उसको पुलोवर बोलते हैं। तो वूल से क्या बनता है? पुलोवर। ऐसे ही गिलास से क्या बनेगा? प्रिज्म। गिलास से क्या बनेगा? प्रिज्म। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। क्लियर? तो गिलास से क्या बनेगा? प्रिज्म। अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे ए प्लस बी का मतलब ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए माइनस बी ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इंटू बी इज द सिस्टर ऑफ बी। और ये एक रिलेशन दे रखा, आपको क्या करना है अब यहाँ पे उसको बिल्कुल सेम फॉलो करना है। जैसे मैं पी डिवाइड, तो पी डिवाइड का मतलब क्या हो गया? डिवाइड पे यहाँ पे क्या है? ए इज द ब्रदर ऑफ पी। तो मैं क्या करूँगा? पी को मैं सिंबल मैंने आपको बता रखा है कि मैं इसको ऐसे सिंबल में रिप्रेजेंट करूँगा स्क्वायर वाले में, तो मेल हो जाएगा। और वो क्या है? ब्रदर है बी का, तो P इज ब्रदर ऑफ M। अभी मुझे M का जेंडर नहीं पता, मैं आगे देखूंगा। M इंटू आर, A इंटू बी मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B। तो अब यहाँ से मुझे जेंडर पता चल गया। M क्या है? सिस्टर है किसकी? R की। क्लियर? अभी मुझे R का जेंडर नहीं पता, मैं R को ऐसे रखूंगा। R माइनस जेड, तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है? A इज डॉटर ऑफ B। तो यहाँ पे R क्या है? डॉटर है किसकी? B की। तो यहाँ पे कोई B होगा। क्लियर? तो मतलब R इज द डॉटर ऑफ जेड, यहाँ पे जेड है तो आर इज द डॉटर ऑफ जेड। आर का जेंडर पता चल गया मुझे। जेड प्लस क्यू, और प्लस का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी। तो जेड क्या है? वाइफ है किसकी? क्यू की। और मेरा क्यों हो जाएगा ये मेल, वाइफ है तो मेल हो जाएगा। तो ये एक फैमिली ट्री बनाने का, फैमिली ट्री आई एम श्योर आपको पता होगा। अगर आपने हमारी पेड वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है ये फैमिली ट्री होता है, इस तरह से फैमिली ट्री हमें बनता है। ये बहुत अच्छा फैमिली ट्री बन गया। अब पूछा है पी इज रिलेटेड टू क्यू, तो पी कैसे है क्यू से रिलेटेड? क्लियरली आप देख रहे हैं पी क्या है? सन है, पी सन है। क्लियर? आप देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। पी क्या है? सन है। नेक्स्ट चलिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैंडिडेट इज कोडिडेट। कैंडिडेट को क्या लिखा है इन्होंने? इस लैंग्वेज में लिख लिया। एक्शन को क्या लिखा है? फॉर इट ऐसे लिखा है। और डिक्टेशन को कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह के क्वेश्चन करने पहले आप वीडियो को पॉज करिए और फिर खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को करने का। जब भी कोडिंग इस तरह की बहुत लंबी लंबी कोडिंग आपके साथ देख तो समझ लीजिए कि डायरेक्ट लिखा है। सी का कोड कितना है? डायरेक्ट लिखे हैं कोड। सी का कोड है यहाँ पे 8। क्लियर? सी का यहाँ पे डायरेक्ट 8 होगा। ए का कोड 4 होगा, एन का कोड 6 होगा। ऐसे डायरेक्ट लिखे रहते जब भी कोडिंग बहुत बड़ी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद से नोटबुक अपनी, जो आप जब भी आप वीडियो देखिए एक रफ नोटबुक लेके बैठिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। जब आपसे नहीं होता तब मेरे आंसर को मैच करिए, मेरी अप्रोच को देखिए। ऐसा नहीं होता कि सर ने जो करा दिया आप उसको देखते जा रहे हैं। ऐसे अगर आप सैनिक स्कूल के एग्जाम में बैठेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं होगा, आप प्रैक्टिस में लैग कर जाएंगे। क्लियर? तो सी का मतलब 8 हो गया। ऐसे ही तो डिक्टेशन, तो डी का मतलब क्या हो गया? डी का यहाँ से 2 निकल रहा है। डी का यहाँ से देखिए 2 है, डी का 2 है यहाँ से। क्लियर? तो डी का यहाँ पे हो गया 2। अब आप जैसे डी का 2 दे तो यहाँ पे मैच करिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 9 8 तक सेम चल रहा है, तो मुझे डी से आगे के मैं नहीं मिलाऊंगा, मैं डी आई सी तक नहीं मिलाऊंगा क्योंकि सेम चल रहे हैं। मैं मिलाऊंगा टी वाला, टी। क्लियर? मैं देखूंगा टी। तो यहाँ पे टी का मतलब क्या हो गया? टी का लास्ट से सेकंड 1, और टी का मतलब 1 यहाँ पे, तो टी का मतलब है 1। तो आप देखेंगे तो टी का मतलब 1 हो गया, तो आप देखेंगे 1 किस में है? 4th नंबर पे 3। तो ऐसे इस तरह के ऑप्शन हो, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से ऑप्शन अप्रोच आपको यहाँ पे यूज करनी होती है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आपको निकालना होता है। चलिए नेक्स्ट। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज में क्या होता है कि भाई यहाँ पे मिरर लगेगा, वाटर इमेज होती तो नीचे लगता। क्लियर? तो ये क्या मिरर इमेज होगा। अब मिरर इमेज में क्या है कि जो वाला पोर्शन इधर है वही सेम पोर्शन इधर बनेगा। यहाँ पे क्या है? मिरर के दूर है, मिरर से क्या डिस्टेंस पे, दूर पे, तो यहाँ पे भी दूर पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा दूर पे। क्लियर? मतलब जो सर्कल में ऐसे बनेगा तो वो ऐसे बनेगा यहाँ पे। देखिए मैं इसको एक बार, हाँ, जैसे सर्कल यहाँ पे बनेगा भैया ऐसे मिरर में ये बनेगा, और जब ये बनेगा तो बिल्कुल ये ऐसे बनेगा। देखिए मतलब यहाँ पे बनेगा ये सर्कल। क्लियर? तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं देखूँ नज़दीक वाले में, ये तो हो गया गलत क्योंकि यहाँ पे बीच में बना हुआ है। ये तीनों अब तक सही है। ठीक है, ये तीनों अब तक सही है क्योंकि यहाँ पे बना है ये वाला। अब अगर मैं देखूं तो दूसरे वाले में जो यहाँ पे जो बना हुआ है, जो यहाँ पे बना हुआ है वो क्या बनेगा? सेम इधर बनेगा। मतलब वो क्या बनेगा? जो इधर है आपका ये, जैसे ये, हाँ यहाँ पे आइए, ये नज़दीक है तो ये वाला, ये तीनों लाइनें नज़दीक मिली हो तो यहाँ पे तीनों लाइनें नज़दीक मिलेंगी।
यहाँ पे तीनों लाइनें नज़दीक मिलेंगी। ये ध्यान रखना आपको, ये तीनों लाइनें क्या होंगी, नज़दीक मिलेंगी ऐसे, ये तीनों लाइनें नज़दीक मिलेगी। और ये है ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये देखिए किस में है, तो ये क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया, दो मिली हुई है तीनों लाइनें। अब बचा ये वाला, ठीक है। अब ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि देखिए ये वाला क्या एरो ऐसे है तो एरो ऐसे हो जाएगा, तो मुझे पूरा भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसी से निकल गया ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। क्लियर, इस तरह से होती है मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये क्या है आपका मिसिंग लेटर सीरीज। मिसिंग लेटर सीरीज, तो पहले हमें क्या बता रखा है मैंने आपको, शॉर्टकट्स यूज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लेटर की सीरीज है सबसे पहले तो 20, और 20 को कैसे करिए, 5 इंटू 4 में डिवाइड कर लीजिए, 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5 में। मैं इसको 5 इंटू 4 में कर लेता हूँ, तो ये हो गया एक यहाँ से 5, 3, ये हो गया 5, ये हो गया 5, और ये लास्ट के 5। अब क्या देख रहे हैं, KOMC यहाँ पे आ गया, KOMC। तो क्या रखेंगे हम, KOMC यहाँ पे N। आप क्या देखेंगे, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि KOQ, अगर मैं यहाँ पे रखूँगा Q, KOQMC हो गया। फिर L यूज कर लिया, M यूज कर लिया, C, तो मेरा क्या बचा, K बचा। यहाँ पे मैंने K यूज कर लिया, सॉरी आपका अब इसमें हम आते हैं, तो L के बाद K के बाद क्या है, L आ गया, L के बाद M आ गया, M के बाद N आ गया, यहाँ से ठीक है KL। फिर O के बाद, क्लियर, O के बाद यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी, तो O के बाद O ही आएगा। क्लियर, यहाँ पे O के बाद O आएगा, तो Q और O सही चल रहा है मेरा। लास्ट में C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, तो यहाँ पे भी C फिल कर दीजिए, यहाँ पे C आ गया। तो आप देखेंगे सेकंड लास्ट में C आ गया, तो ये तो हो गया मेरा ऑप्शन। लेकिन फिर भी यहाँ पे M है, यहाँ पे M है सेकंड लास्ट में, यहाँ पे सेकंड लास्ट में M है, तो यहाँ पे भी सेकंड लास्ट में क्या आएगा, M आएगा। तो इस तरह से आपको इनको मिलाना होता है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, 5 में डिवाइड कर दीजिए, ये 5 का हो गया, पेयर 5 का हो गया, ये 5 का हो गया। अब पहले पे K है, दूसरे पे L है, M है, N है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पे O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, O आएगा। तीसरे पे क्या है, Q है, यहाँ पे भी Q है, तो यहाँ पे भी Q आएगा, और यहाँ पे भी Q आएगा। चौथे पे M है, यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है, तो यहाँ पे M आएगा। अगर लास्ट में देखूँ C है, तो यहाँ पे भी C आएगा। तो मेरा बना QOQCM। ऑप्शन 4 मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, आपको पेयर में डिवाइड करने होते, देन सोल्व द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए। आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है और अप्रोच को मैच करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, तो हमारी आप क्विज कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी क्विज कोर्सेज में आपको बिल्कुल एक टाइम बाउंड मैनर में आपको सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने दिए हैं जो बिल्कुल एकदम हिट करेंगे आपके एग्जाम आने वाले सैनिक स्कूल 2022 के एग्जाम को। क्लियर, हमारे बेस्ट कोर्सेज पेड कोर्सेज भी आते हैं, जिसमें आपको सारी लेक्चर्स, वीडियोस, टॉपिक, क्विज सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। अगर आप एस्पिरेंट है 2022 सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए, तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे हमारे ये कोर्सेज है, आप किसी भी कोर्स को ले सकते हैं। हमारा प्रीमियम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। प्रीमियम ग्रुप में आपको क्या होगा कि वीडियो की नोटिफिकेशंस, आपको ऐप जो सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, एडमिट कार्ड वगैरह, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसमें हमारे जो मेंटर है आपको असिस्ट करते हैं, वो सारे आपको बेनिफिट हमारे प्रीमियम टेलीग्राम से ग्रुप से मिलते हैं। पेन ड्राइव कोर्सेज भी है, उसको भी अवेल कर सकते हैं आपका, अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है। क्लियर, ये हमारा ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए। विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म पे, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, किसी पे भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सके।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए, सो दैट आपको जो भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए, आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर सकें। क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आप एग्जाम में करके जाएंगे बच्चों, इतने ही ज़्यादा आपके स्कोर बनेगा। आप थ्योरी कितनी भी कर लीजिए, बट अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करे हैं और वो भी एग्जाम रिलेटेड, भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन तो 1000 हो सकते हैं, लेकिन आपने अगर एग्जाम रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किए हैं इन द एग्जाम, आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सोल्व करके गए हैं, तो आपसे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर भी कोई डाउट आपको पूछना है तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।